وہ پروگرام کا آغاز ہے وہ اچھی بات سے کرتے ہیں، تو جناب آج کی اچھی بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں نہ کم پڑ جاتی ہیں. ہم جتنا کسی کے لیے کچھ کر لیں، جتنا ڈیڈیکیشن دکھا دیں، جتنی گیور بن جائیں، اور کسی کو کھونے کے لیے بس کہتے ہیں نا ایک غلط فہمی کافی ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں بدگمانی سے گریز کرنا چاہیے. اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ میں نے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو پروفیشنلی بڑا ساؤنڈ ہوتے ہیں یا اپنی نارمل لائف میں باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن کانوں کے اتنے کچے کیسے ہو سکتے ہیں. کس طریقے سے اپنی وہ ساری ایک کہتے ہیں نا کہ مثبت جو سوچ ہے اسے بالکل رائگاں کر کے کسی بھی بندے کے لیے شاید وہ انہیں جانتے بھی ہوں گے ایک الگ پرسنالٹی انالیسس کریٹ کر لیتے ہیں، اس بنیاد پہ ججمنٹ کریٹ کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شیرین، ایک الگ پرسیپشن بنا لیتے ہیں اور اس پرسیپشن کے بیس پر پھر وہ لوگ اس انسان کو جج کرنے لگتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، یہ ضروری ہے. بدگمانی سے مراد اگر یہ ہے کہ بغیر ٹھوس ثبوت یا دلیل کے کسی کے برے ہونے کا پختہ یقین کر لینا یا دل میں یہ شک یا وہم پال لینا کہ یہ غلطی اس بندے نے کی ہوگی یا یہ بندہ ہی غلط ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے رشتوں کو کمزور کرتی ہے اور اس کے ہمارے دین میں بھی سختی سے جو ہے نا ممانعت کی گئی، منع کیا گیا کہ آپ خود سے جو ہے نا کوئی بھی بات اپنے دماغ میں اوور تھنک کر کے نہ بنائیں. کیونکہ شفق دین بھی آپ کو سکھاتا ہے، باقاعدہ سٹیپس ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ پہلے آپ کو اگر آپ تک کوئی خبر آتی ہے پہلے آپ اس کو کہتے ہیں نا بخوبی طور پر سن لیں، اس کو دیکھیں اور پھر اگلے بندے سے کلیئرٹی لیں. اور کلیئرٹی والا سٹیج تو تب آئے گا نا جب آپ خود بھی اس چیز کو ریئلائز کریں کہ کیا واقعی یہ جو بدگمانی میرے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس میں اتنا ویٹیج ہے، کیا اس میں اتنا وزن ہے، آپ کی اپنی عقل کہاں ہے. ٹھیک ہے، اب بعض اوقات جیسے کہ ہم دیکھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوتا، آپ پرسیپشن کچھ بناتے ہیں اور سامنے کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اتنی سی چیز ہوتی ہے اس کا ایک بڑا پرسیپشن آپ بنا لیتے ہیں اور حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلتی ہے، اس کے بالکل مختلف ہوتا ہے اس کی جو ریالٹی ہوتی ہے نا. اب تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ کمیونیکیشن رکھیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. اب بدگمانی میں عموماً انسان نا منفی رویہ اختیار کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جس سے جو ذہنی صحت ہے وہ بھی بہت حد تک متاثر ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، میں آپ کو گارنٹی بتا دوں کہ وہ کچھ راستہ بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کو لگتا ہے ہاں یار آپ بدگمان ہو گئے ہیں کسی کو لے کر. ٹھیک ہے، جہاں کمیونیکیشن نہیں آپ نے افورڈ کیا، کلیئرٹی نہیں دی کسی بھی رشتے میں، ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ کو بہت سارے لوگ جو بدگمان آپ کو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی راستہ آگے بڑھتا ہے آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا اس بدگمانی کی وجہ سے، تو ہوتا یہ کہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، انسان پھر اکیلا رہ جاتا ہے. لہٰذا جب بھی ذہن میں بدگمانی پیدا ہو تو فوراً یہ خیال دل میں لائیں کہ یہ گناہ ہے اور مجھے اس سے ہر صورت بچنا ہے. اور پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بات آپ کے دل سے نہیں نکل رہی تو خدارہ جائیں، جس بھی انسان سے ریلیٹڈ وہ بات ہے اس کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور جو ہے نا اس چیز کو کلیئر کریں. کیونکہ شیرین وہ بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ اگر بات ضروری ہے تو انسان بھول جاؤ اور اگر انسان ضروری ہے تو پھر بات بھول جاؤ. کیا بات ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اسی کے ساتھ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کھلی ہے یا بند، امریکہ کا عالمی گزرگاہ کھلی ہونے کا دعویٰ. ایران کہتا ہے سب بند پڑا ہے، جبکہ امریکی فوج کی ایران پر لگاتار 10ویں رات بھی بمباری جاری ہے. امریکہ پھر تنازع کے سفارتی حل کی باتیں کرنے لگا. فاکس نیوز کے مطابق ایران پر بڑے حملے کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، پروگرام میں آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس کی ہمارے پاس کیا ریسنٹ اطلاعات آ رہی ہے. اب امریکہ ایران سیز فائر کے لیے ثالث متحرک 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز، واشنگٹن اور تہران کی جانب سے کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں، اچھی بات ہے. ایرانی وزیر داخلہ کے دورہ اسلام آباد سے اچھی خبر ملنے کی بھی امید ہے. سکندر مومنی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اہم ملاقات میں ایرانی صدر کا جو پیغام ہے وہ بھی پہنچائیں گے. میڈیشن کا رول تو پاکستان کی جانب سے دیکھیں، جہاں پر معاملات سٹینڈ سٹل ہوتے ہیں وہاں پاکستان اپنا رول نبھاتا ہے بخوبی طور پر. بالکل ایسی ہے، جو کوئی نہیں کر پاتا وہ پھر الٹیمیٹلی پاکستان ہی کرتا ہے. بہرحال ایران امریکہ کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر سے بھونچال دیکھا جا رہا ہے. برطانوی برنٹ کروڈ 88 اور امریکی خام تیل $82 تک جا پہنچا اور پاکستان میں ڈیزل مزید $5.71 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی بات کریں تو وہ 35 پیسے سستا کر کے حکومت نے عوام کے زخموں پر
नमक छिड़कती है। क्योंकि क्या वर्थ है, मुझे बताया ना, आप इतने पैसे बढ़ाकर कुछ पैसे कम कर दें अगर, तो लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। और फिर अवाम यही मुतालबा करते हैं, तो फिर ना ही किया करें ऐसा। अब ये रहा है कि यौमिया बेसिस पे इसकी जो एनालिसिस है वो की जाती है और हर दिन के हवाले से कीमतों का तयन किया जाता है। चलेंगे आगे प्रोग्राम में चलकर इस पर बात करेंगे। और जी मौसम का क्विकली आप लोगों को जिक्र करते हैं कि मानसून के धुआंधार स्पेल की एंट्री हो गई है जनाब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, अटक और गुजरात में जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें हुई और 14 जिंदगियां चली गई हैं। खैबर सवात और लोअर चित्राल में सैलाबी सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में भी तोदा गिरने से माँ और 2 बच्चों समेत जो है वो इस दुनिया से चले गए। तो इस तरह के वाक़यात जो होते हैं, जब कहते हैं ना कि अब्र रहमत ज़हमत बन जाती है, क्योंकि हम इंतज़ामी तौर पर इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जी अब क्या दुनिया तैयार है जो कुछ हो रहा है उस हवाले से ये देखना बड़ा ज़रूरी है। हम बात करें कि जी अमेरिका ईरान पर मुसलसल 10वें रोज़ भी अमेरिका की जानिब से ये वक़ार जारी है। जज़ीरा क़ुशम और बंदर अब्बास में धमाके रिपोर्ट हो रहे हैं। शाहबहार, कुनारक और शिराज के इलाके भी लरज़ गए हैं। वो शहर की बात करें जहां एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल है और अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़ मीज़ाइल और ड्रोन लॉन्च करने वाली जगहों और जो फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात हैं उससे बाकायदा तौर पर निशाना बनाया बिल्कुल ऐसे ही। और दावा किया गया कि आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है। मई से अब तक तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता दिया गया और इसी तरह 45 करोड़ बैरल तेल की मुंतकली में मदद फराहम की, जबकि ईरान का आबने हुर्मुज़ मुसलसल बंद होने का दावा। और पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया कि बैनुल अक़वामी समंदरी गुजरगाह से जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स में धमाकों के बाद आग लग गई, जो मुमकिन तौर पर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजर रहे थे। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के हमलों का सिलसिला भी जारी है और ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कुवैत में अरफजान एयरबेस पर हमला करके अमरीकी मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया गया और अल-सलाम एयरबेस में MQ-9 ड्रोन हैंगर टारगेट। फिर इस तरह बहरीन में अमरीकी पेट्रियट दिफाई निज़ाम को भी निशाने पर रख लिया गया और इसके साथ साथ अमरीकी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा भी किया गया है। तो दोनों साइड से जो है ना वो कशीदगी बरकरार है। दोनों साइड्स पे ही जो है ना वो बहुत सारे वेरिएबल्स इंक्लूडेड, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है और अगर हम ये कहें कि बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ये भी गलत नहीं होगा, ज़ाहिर है। और फिर देखिए ना, हम सिचुएशन को थोड़ा सिर्फ भी अगर एनालाइज करें कि ईरान पर तबाहकुन हमले सदर ट्रम्प की हिदायत तक जारी रहेंगे। तेहरान ताउन करे या ना करे, आपने हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील नहीं रुकेगी। अब ये जो इम्पोर्टेंट बयान है वो किसकी जानिब से दिया जा रहा है? अमरीकी वज़ीर तवानाई की जानिब से, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि सदर ट्रम्प तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो तो जंग ख़त्म हो सकती है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक वाशिंगटन में ईरान के खिलाफ मुमकिन बड़े ऑप्शंस और ऑपरेशन पर गौर जारी है और जंग में जो तोसी का फैसला हुआ तो इसराइल की शमूलियत का इम्कान है। हमले पहले से ज़्यादा शदीद होंगे। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजी तैयारों की तैनाती से मुतालिक हतमी फ़ैसला सदर ट्रम्प करेंगे। यानी कि सिचुएशन आपको अभी तक नज़र आ रही है कि अमरीकी वज़ीर तवानाई की जानिब से ये कुछ कहा जा रहा है। अभी तो जो बादी नज़र में जो जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं और जिस सूरत हाल हम देख रहे हैं, कुछ भी कहना, कुछ भी एनालाइज करना क़ाबिल इस वक्त होगा। लेकिन एक चीज़ तो खैर तय है कि खुदा न ख्वासा अव्वल तो ये बात है कि ख़ित्ता अफोर्ड नहीं कर सकता दोबारा उस तरह की सिचुएशन जिससे हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि उस वक्त मजमूई तौर पर एक सप्लाई चेन, एक ग्लोबल चेन, मुल्की हालात क्या रहे, इन्फ्लेशन क्या रहा। तो उम्मीद तो यही है, दुआ को भी यही कि दोनों फरीक इस हवाले से जो है वो जल्द राज़ी हो जाए। और जी अमरीकी फ़ौज ने उर्दन में हलाक 2 फ़ौजी की जो शनाख्त है वो भी ज़ाहिर कर दी है। आप लोगों को क्विकली बताते हैं कि उस हवाले से क्या हमारे पास इत्तलात है। 25 साल का फर्स्ट लेफ्टिनेंट टायलर जेम्स है और 19 साल की अज़ाबेला गोंजालेस शामिल है। रवा माह की अगर बात करें तो ईरान जंग में 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए और 96% ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। यानी कि ये एक बेसिकली मिलिट्री इंगेजमेंट के हवाले से कुछ स्टैट्स जो सामने आए हैं और आई थिंक ये इट्स वेरी कि एक तरह से एक रूटीन की बात होती है कि जब भी इस तरह कोई सिचुएशन होती है तो जिस भी मुल्क की फ़ौज वहाँ पर इंगेज होती है
تو اس حوالے سے پینٹاگون اپنی رپورٹ باقاعدہ جیسا اگر امریکہ کے بارے میں تو امریکہ کی جانب سے پینٹاگون کی جانب سے رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران 17 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 427 زخمی ہوئے ہیں۔ پھر نیو یارک ٹائمز سے اگر بات کریں تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پینٹاگون نے ایران جنگ میں زخمی درجنوں امریکی فوجیوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ اردن میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور ہیلی کاپٹر متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معلومات آپریشنل سیکیورٹی کے باعث پبلک نہیں کی گئیں۔ جنگ میں اب تک 1700 سے زائد ایرانی شہریوں کی اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے بہت سارے معاملات چونکہ یہ ڈسکریٹ ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں پبلک ڈومین میں اس طرح سے شیئر نہیں کی جاتی، اور یہی جو ہے نا وہ انہوں نے موقف بھی ان کا سامنے آیا اس طرح سے امریکہ کا کہ ہم نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے نا بہت ساری چیزیں پبلک نہیں کی، لیکن جو ابتدائی طور پر رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے پینٹاگون کی بھی، اور لیکن ان کی پکچرز بھی ہیں، اور جو لڑکی جس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ جو 25 سال کا لڑکا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح پھر جو انسائٹس ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ اب جی کسی بھی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جنگ رکوانے کے لیے کون سب سے زیادہ متحرک ہے، کون سا ملک جو کہ سب سے زیادہ کنسرنڈ ہے، ہمیں کوئی دو رائے نہیں یہ بات کہنے میں کہ اس میں پاکستان کا ایک بہت پرومیننٹ رول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایسی چیزوں سے گزر چکا ہے، پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ آگے معاملات خدا نہ خواستہ ابھی بھی اور آگے کس جانب بڑھ سکتے ہیں۔ اب جو ثالثی کا جو ایک رول ہے وہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر پاکستان کا۔ لیکن ایک بات ہم کہتے ہیں کہ یہ تو وہ انسائٹس ہیں نا، جیسے کہ ابھی آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں، ہم آتے ہیں اس خبر پہ بھی، یہ تو وہ انسائٹس ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر خبر نہیں ہے ڈزنٹ مین کہ پاکستان اپنا ایک جو بیک ڈور ڈپلومیسی کا رول ہے وہ نہیں نبھا رہا۔ وہ ایک چینل چلتا ہے تو ہی معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی آپ کے پاس ایک پروسیس ہے، وہ کوئی ایک ہیپننگ چیز نہیں ہے کہ اوور نائٹ پروسیس تو نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک ملاقات کی، اس کے پیچھے ایک ایفرٹس لگتے ہیں، اور اس ایفرٹس کا جو ایک ثمر ہے وہ اب آپ کو ویژولز میں دکھ رہا ہے۔ اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز ہے سامنے آ رہی ہے، کشیدگی میں کمی کے بعد ایم او یو پر دوبارہ عمل درآمد شروع ہوگا، اور اچھی بات یہ ہے ناظرین کہ واشنگٹن اور تہران سے بھی کشیدگی میں کمی کے لیے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا۔ یہ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سکندر مومنی کے دورے سے اچھی خبر ملنے کی امید ہے۔ وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام پاکستانی قیادت تک پہنچایا جائے گا۔ تو دیکھیں پاکستان تو اپنی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان پراکسیمیٹی شٹل ڈپلومیسی کر رہا ہے، ہر فورم پر بات کر رہا ہے، لیکن بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ دونوں فریقین کو بھی چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور جو فریق آپ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں نا ایٹ لیسٹ اس کی بات کا ہی پاس رکھیں، مان رکھیں، اور اپنی بیان بازی بند کریں اور تحمل سے ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں جناب۔ بالکل بڑی اہم بات ہے یہ، اور دیکھیں پھر اس طرح جو یہ تو چلے ایک پروسیس آف پیس اینڈ ڈپلومیسی ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جس سے آپ کا ہمارا ہم سب کا کچن وابستہ ہے، ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ گئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل بھونچال ہے، اور جیسے کہ خبر بھائی انداز نے آ کے شو میں روزانہ ہم جو قیمتیں ہیں اس حوالے سے جو اسٹیٹس ہم تک پہنچاتے ہیں، تو جی آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں کہ برطانوی برنٹ کروڈ 88 جبکہ امریکی خام تیل $82 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین شروع ہو گیا ہے، اور حکومت نے عوام پر بڑی مہربانی کی ہے جناب، بہت زیادہ، جہاں پیٹرول صرف 35 پیسے سستا کیا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا امپیکٹ ہے جو کہ لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو سی دس۔ جبکہ ڈیزل $5.71 مہنگا کر دی گیا ہے، اور ڈیزل کی جو نئی قیمت ہے وہ $360.06 اور پیٹرول کی نئی قیمت $315.80 ہو گئی ہے، اور قیمتیں صرف آج تک کے لیے ہیں۔ اب کل کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں، کیونکہ ہم تو اور اگر کل بھی یہی کچھ ہونا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کریں۔ اور آج ٹیوزڈے ہے، غالباً تو ٹیوزڈے ہے رائٹ، تو مسلسل ہم بات کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا صورتحال آگے ہو سکتی ہے، امریکہ ایران کشیدگی کہاں جا کر رکے گی، سب سے بنیادی سوال ہے۔ ثالث پھر متحرک ہو چکے ہیں، اور 10 دن کے لیے جنگ بندی کی تجویز بھی سامنے آ گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب۔ وقار صاحب بہت شکریہ، خبر بھائی انداز سے ہمیں آپ نے وقت دیا، گڈ مارننگ۔ سر کہیے گا کہ ایرانی وزیر داخلہ اسلام آباد میں ہے، کتنا اہم دورہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ آپ واشنگٹن اور تہران سے بھی کچھ اچھی خبریں ملنے کی امید ہے؟ کین وی ریئلی ایکسپیکٹ سم گڈ نیوز فرام دیم سائڈس؟
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल है, बिकॉज जो पाकिस्तान ने एफर्ट की, आपको याद होगा लास्ट टाइम सीज फायर हुआ, उसके बाद एक अच्छा पीरियड गुजरा नेगोशिएशंस का, और दोबारा फिर ये आई थिंक लड़ाई शुरू हुई है। इसमें आई थिंक जो स्ट्रक्चर है लड़ाई का, थोड़ा एक मिनट आई लूंगा इस पे, वो काफी अनस्टेबल है। यानी जो तीन बेलिजरेंट्स हैं बड़े, उसमें इजराइल एक कॉर्नर में ट्रायंगल के, एक तरफ ट्रम्प साहब है, एक तरफ IRGC है विद इन ईरानियन रिजीम जो है, और तीनों अनस्टेबल है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, नी जर्क रिएक्शंस हैं, एंड दैट्स व्हाई जो है। फिर नीचे आ जाएं, अगर त्रिकोण के नीचे जो बाकी ममालिक हैं गल्फ के, 5 ममालिक हैं गल्फ के, GCC के, फिर जॉर्डन है, देन जो है हुतीज हैं यमन में, और फिर ऊपर हिजबुल्लाह है इराक में। तो ये सारी एंटिटीज भी कनेक्टेड हैं डायरेक्टली या डायरेक्टली। तो देखा जाए एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर पाकिस्तान ने जो वेंचर किया, ये बहुत बड़ी आई थिंक एफर्ट थी, सक्सेस है। फिर बाकी खत्ते के दोस्त मालिक ने रैली किया, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, इजिप्ट ने, तुर्किया ने, और लेटर ऑन इवन UAE ने, बिकॉज नोबडी वांटेड कि ये वॉर। अभी आई थिंक जब हुआ ये सेकंड राउंड जब शुरू हुआ है लड़ाई का, इसमें ट्रिगर तो IRGC ने, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मतलब वो 3 शिप्स को अगर हिट ना करते तो एक बहाना ना मिलता दूसरी लॉबी को। और लेकिन अभी आपने देखा है कि बजाय इसके कि मिलिट्री टारगेट्स ही एंगेज हों, भी स्कॉट और पॉलिसी चल रही दोनों तरफ, सिविलियन टारगेट्स हैं, इसमें ब्रिजेस हैं, इसमें वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, और बेसिस तो हैं ही है। तो इसका मतलब है खुदा ना खास्ता अभी फर्दर मिसकैलकुलेशन होती है तो लड़ाई फिर रीजन में फैल जाएगी। तो उस लिहाज से एक तो ये दौरा बड़ा अहम है। आई थिंक एक मैसेजिंग हुई है। अभी रॉयटर्स को आप फॉलो करें, परसों मार्को रूबियो का स्टेटमेंट था कि वी आर स्टिल फॉर डिप्लोमेसी, क्योंकि अल्टीमेटली आप बेशक 1 महीना और लड़ लें, ठीक, और रीजन की तबाही हो जाए, उसके बाद फिर आपने बैठना ही है। तो ये एक बड़ी अच्छी विंडो है, आई वुड से, अभी खुली है, जिससे शायद ईरान की भी रियलाइजेशन है कि चीजों को रोकना चाहिए। अभी आपने देख ने थ्रेटन कर दिया है कि बाबुल मंदब को वो बंद करें, सऊदी आप इस तरीके से करेंगे तो साफ ज़रा कल सऊदी अरेबिया के शिप पे अटैक होगा, हो सकता है कोई जहाज तेल लेके इधर आ रहा हो पाकिस्तान में, तो फिर मतलब वेल पाकिस्तान आपका एक डिफेंस एग्रीमेंट है। तो दैट्स वेयर आई फील कि ईरानियन लीडरशिप शुड आल्सो नाउ रियलाइज कि आप एक रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं। इसका अल्टीमेट लॉस विल बी इस्लामिक वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट है, और खुद होगा। तो उससे बचने के लिए आई थिंक ये बड़ी अच्छी विंडो है। बल्कि अभी आज फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में भी छपा है एक मजमून, जिसमें जो अमेरिका का आई थिंक सबसे बड़ा मैगजीन है, कि हाउ पाकिस्तान इज वन द वॉर इन द मिडिल ईस्ट, पीस की जो लड़ाई है। तो ये आई थिंक आई वुड से एक बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है, जिसको ईरान को भी कैश करना चाहिए। पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक को भी रिस्ट्रेन करने को कह सकता है। फिर 10 दिन सीज फायर की बात हो रही है, ताकि कम से कम सांस आए, नेगोशिएटर्स को स्पेस मिले और चीजें आगे चले। दुरुस्त कह रहे हैं वकार साहब, पाकिस्तान ने हमेशा से यही कोशिश की कि मामलात बेहतर तरीके से आगे चलें, और पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल प्ले किया, सोशल डिप्लोमेसी की, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ है। लेकिन इन दोनों फरीकैन को भी तो चाहिए ना कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि दुनिया अब किसी भी नई जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन स्टिल हमने देखा कि दोनों जानिब से बयानबाजी भी जारी है, फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भी हम बैठना चाहते हैं, जंग ख़त्म करना चाहते हैं। अब सिकंदर मोमनी भी पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, तो आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या निकल सकता है? जी वही है, देखें इट्स वेरी डिफिकल्ट देखें प्रेडिक्ट करना। शुरू में हमें काफी होप्स थी जब ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है लड़ाई का, जो जिसमें वॉरिंग पार्टीज को जरूर देखा करेंगे हु इज फाइटिंग, वो तीनों जो कॉर्नर्स है ट्रायंगल के वैसे ही अनस्टेबल हैं। यानी इनको बिठाना, इनको कहना ये ठंडे सांस लें और थोड़ा सोचें, बिकॉज ईरान में भी अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि देयर इज अ स्प्लिट बिटवीन पॉलिटिकल साइड और जो मिलिट्री साइड। IRGC मेनली कॉल्स द शॉट्स, लेट्स बी वेरी वेरी फ्रैंक। अभी जो है बात यह है कि अपीयर लाइक अ स्ट्रीट फाइट उनके लिए, कि जी हमारी टांग ऊपर होनी चाहिए, या हमारा बेसिकली ईगो के मसले बने हुए हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अभी जो टारगेटिंग हो रही है ईरान में, अगर आप देखें 4 फ्रंटलाइन सूबे हैं, जस्ट टेक अ मिनट, ईस्ट से आप शुरू हो जाएं, आपका सिस्तान और बलूचिस्तान है जहाँ पे चाबहार पोर्ट है, फिर ऊपर आप आ जाएं हरमुजगान है जहाँ पे बंदर अब्बास है सेंटर में स्टेट ऑफ हरमुज के, और फिर आपका इवन आई थिंक शिराज का जो इलाका है वो इम्पेक्टेड है। ऊपर फिर आपका आ जाता है जो सूबे हैं कुवैत के साथ बॉर्डरिंग है। अब ये फ्रंट लाइन सूबे 150 किलोमीटर की बेल्ट पे सख्त बम्बार्टमेंट हो रही है और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली किसका लॉस होगा? इसका मतलब है कि लॉन्ग रन में खुदा ना खास्ता अभी तो $300 बिलियन की बात हो रही थी कंस्ट्रक्शन की ईरान की, हो सकता है आपको $1 ट्रिलियन लगाना पड़े, और फिर आपने दोबारा आना है, रहना इंटरनेशनल कम्युनिटी में। एक बड़ी अच्छी ओपनिंग मिली थी, तो मेरे ख्याल में ओनस उन पे भी है, बाकी US एडमिनिस्ट्रेशन को भी
ज्यादा वो भी नहीं बेच सकते, बिकॉज अभी जो खबरें आ रही हैं कि डिलीट हो रहे हैं स्टॉक्स उनके और कैजुअलिटी शुरू हो गई हैं। फिर ये कहते हैं जी बॉडी बैग्स आएंगे। एक तरफ इजराइल है जो रोजाना जो है कभी गजा पे चढ़ाई की होती, कभी लेबनान पे, तो ये तीनों एंटिटीज को आई थिंक ठंडे सांस लेके और आराम से बैठ के बातचीत करनी चाहिए और यही वो मौका है। तो इसीलिए आई थिंक दो सिनारियोज हो सकते हैं। एक तो ये सीज फायर को एक्सपेंड करके आप पूरी स्पेस क्रिएट करें और चीजों को हतमी जो है पीस की तरफ जाए। दूसरा सिनेरियो बहुत डेंजरस है, वो एक रीजनल वॉर है जिसमें खुदा ना खास्ता आई कैन फोरसी पाकिस्तान कमिंग इनटू इट। फिर यहाँ पे शोर मचेगा, फिर बात हो जाएगी, शिज्म की बात हो जाएगी, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। हालांकि ये सारा हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है और खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया को ज्यादा थ्रेटन किया जाता है तो पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट है इन्वोक हो जाएगा। आपकी रिलेशनशिप भी, आपकी कमिटमेंट्स हैं, कल उन्होंने हमारे काम आना है तो आज मुसीबत में हमने उनके काम आना है। अमन शिल्टान की हिफाजत हमारा फर्ज है। तो ये आई थिंक रियलाइजेशन होनी चाहिए ईरान को भी कि आप इसको रोकें। जो इनके मुतारिफ ग्रुप्स हैं लाइक हूतीज हैं, दुरुस्त बात है। और वकार साहब एक बात जो आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग की है कि ये जो रिलेशनशिप है वही तो हमारा कमिटमेंट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद थे और बड़ा ही अच्छा और मुफस्सल अंदाज में जो तज्जिया है मजमूई सूरत हाल पर उन्होंने समा के नाज़रीन के सामने रखा। जी बात कर लेते हैं बारिशों के हवाले से, मौसम के हवाले से। तो मॉनसून के धुआंधार स्पेल की एंट्री हो चुकी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, अतक और गुजरात में जल थल एक हो गया। केपी में तूफानी बारिशें 14 जिंदगियां ले गईं। खैबर, सुवात और लोअर चतराल में सैलाबी सूरत हाल है। जबकि आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी तौदा गिरने से माँ 2 बच्चों समेत जान की बाजी हार गई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाबी सूरत हाल समेत लैंड स्लाइडिंग के हवाले से अलर्ट जारी कर दिए हैं। जबकि दरिया बिफर सकते हैं, डैमों में पानी की सतह भी मुसलसल बढ़ रही है और शहरियों और सयाहती मकामात जाने वालों को भी इंतहाई एहतियात करने की हिदायत जारी की गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मौसम के हवाले से सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल गुजरात की बताते हैं, जहां इतनी बारिश हुई है कि गाड़ियां डूब गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया और वासे की नाहली का जो पोल है वो बखूबी तौर पर खोल गया और कुछ विजुअल्स भी जैसे कि हम आपको साथ साथ दिखा रहे थे कि बारिश ने एक बार फिर शहर को डुबो दिया है। समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से मज़ीद बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा बारिश के बाद क्या सूरत हाल है सड़कों की? जी, गुजरात में मानसून के ताकतवर स्पेल का आगाज हो चुका है। सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। तमाम बारिश के बायस शहर के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। गली महलों में शहर की अहम शाहराहों पर कई फुट जो है वो पानी जमा है, जिसके बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ वासा और ज़ली इंतज़ामिया की कारकर्दगी की बात करें तो उनकी कारकर्दगी महज दावों तक महदूद दिखाई देती है। 3-4 घंटे की बारिश ने शहर को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया है, जिसके बायस जहां शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, वहीं पर जो है वो मानसून की बारिशों से शहरियों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि निकासियाब के हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाए, वासा की टीमों को मुतहरक किया जाए ताकि निकासियाब के इक़दामात से शहरियों को जो है वो आमदोरफ्त में आसानी मुयस्सर आ सके। जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि जुल्फ़िकार हैदर जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि जब इस तरह की अब सड़कें निकासी आपका निज़ाम बेहतर नहीं होता है तो ज़ाहिर सी बात है जो एक मामला ज़िंदगी है वो मुतासर होते हैं। अब नौशहरा से खबर दें जहाँ सैलाबी रैली में फंसे 18 अफराद को बचा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अकोड़ा खटक में साहबजादा टाउन में 12 अफराद रैली में फंस गए थे। ये आप देख रहे हैं, विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक रेस्क्यू का ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि बाहिम्मत हमारे जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो यहाँ से जो शहरी हैं उन्हें रेस्क्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कुल ये 12 अफराद हैं जिनका बाहिफाजत रेस्क्यू का ये अमल है मुकम्मल किया गया। सैलाबी रैली में फंसे 18 अफराद की जान बचा ली गई और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को हाथों में उठाए ये रेस्क्यू एहलकार और किस हद तक आप देख रहे हैं घुटनों से भी ऊपर बाकायदा हम देख रहे हैं ये सैलाबी रेला है, पानी है जहाँ पर ये जो लोग थे
18 लोग ये फंसे हुए और यूँ 12 अफराद को जो है वो बाहिफाजत सेफली मुंतकिल किया गया। इसी तरह आदमजई के करीब फ्लैश फ्लड में महसूर होने वाले 6 अफराद को भी रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और जैसे शीरी हमें बता रही थी कि ये वो मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, लाहौर की बात कर लेते हैं। तो जनाब लाहौर में भी गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हम खुद भी जब सुबह आ रहे थे तो हमने खुद विटनेस किया कि मौसम जो है ना वो अबरालूद था। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि रिमझिम का ये सिलसिला मज़ीद 4 दिन तक जारी रहेगा। मज़ीद क्या ताज़तरीन सूरत हाल है जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सालिक नवाज से। सालिक, मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात गए होने वाली बारिश के बायस शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी आसमान पर काले बादल मौजूद हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। शहर में होने वाली बारिशों के बायस जहां नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए, वहीं लेस्को का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। शहर के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वहां पर बिजली ना होने के बायस जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो PDMA है उसकी जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दरियाए जेलम और दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि इन दरियाओं से मुल्का जो आबादियाँ हैं वहाँ से शहरियों के इनखला को भी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक, हमें डिटेल्स बता रहे थे लाहौर की। अब दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बाद झंग में भी मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी रेला 48 घंटों बाद तरीमों के मकाम से गुजरेगा। दरिया किनारे आबाद जो आबादियाँ हैं और ख़ास तौर पर जो काश्तकार हैं, दरियाई कटाव के बाद तशवीश की उनमें एक लहर दौड़ गई है। जाहिर सी बात है उनकी तो सारी कुछ जमा पूंजी उससे अफेक्टेड होती है और मुंसलिक होती है। बिल्कुल ऐसे। ये मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त दरियाए चनाब के किनारे, जहाँ पर सैलाबी पानी का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है और पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। मराला से चलने वाला जो सैलाबी रेला है वो आइंदा 48 घंटों में जो है तरीमू के मकाम से गुजरेगा। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक इलाका मकीन भी मौजूद है, वो उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। हर साल की तरह बहुत ही एकड़ के 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ ज़मीन जिनकी थी वो दरियाओं में चली गई। वो अब क्या करेंगे, उनकी तो ज़मीनें ख़त्म हो गई, कोई और काम भी नहीं कर सकते, इसलिए हम बहुत ही नुकसान में जा रहे हैं। जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि दरिया के कटाव की वजह से जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात हैं वो तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो लोगों को, जो दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की जो है वो हदायत जारी कर दी हैं। जी ठीक है अर्शद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डस्का से गुजरने वाले नाले एक को अब तक साफ नहीं किया जा सका और हर साल तोगयानी के बायस नाला बिफर जाता है, जिससे दर्जनों देहातों का ज़रई रकबा और मवेशी पानी में बह जाते हैं। देखिए हर साल की ये प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी जो है ना वो इंतजाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा होते हैं। मजीद बात करते हैं, वहाँ मौजूद है समा के नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त कोटली मरला के मकाम पे नाला एक पे मौजूद हूँ, जहाँ हर साल नाला एक में तुगयानी आती है और नाला बिफर जाता है और दर्जनों देहातों का सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ जाता है। लोगों के मवेशी पानी में बह जाते हैं, लोगों की अमलाक को शदीद नुकसान होता है। मैं इस वक्त नाला एक पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अभी तक नाले की सफाई नहीं की गई और नाला जो है 60% से ज़ायद जो है वो इस वक्त कच्चे के बायस ब्लाक हुआ है। जब हमारी इस हवाले से इलाका मकीनों से बात हुई तो इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बर वक्त इसकी सफाई ना की गई तो एक बार फिर हमारे अमलाक को, हमारे मवेशियों को और हमारे ज़री रकबे को नुकसान पहुंचने का खदशा है। शहरियों ने, इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर इस नाले की सफाई की जाए। ठीक है जी, तो ये तो सूरत हाल थी नाला है कि अब मानसून बारिशें इस साल भी हसन अब्दाल के नवाही इलाके कोहलिया समेत दर्जनों देहातों के मकीनों के लिए जहमत बन गई है। मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा करके सोचें कोहलिया पुल बनवाया जो सैलाबी रेले की नज़र हो गया। जाहिर सी बात है क्योंकि देखिए एक रीज़न है ना, अब ये बेचारे मकामी लोग क्या ही कितनी पुख्तगी उसमें वो कर लेंगे, कितना ही चंदा जमा करके क्या ही चीज़ वो बना लेंगे खुद से लिए।
तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी देहात का शहर से राब्ता टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उस पर रिपोर्ट तैयार की मोहम्मद गुलफराज ने देख लिया। मॉनसून सीजन एक बार फिर हसन अब्दाल के शहरियों के लिए आजमाइश। दरियाए हरों का तेज रेला फिर कोलिया पुल को बहा ले गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकीन कई किलोमीटर का अजाफी सफर करने पर मजबूर। तलबा और मरीज सबसे ज्यादा परेशान। स्कूल के जो बच्चे हैं उनका या जो मरीज हम लेके जाना हो उनके लिए फिर हमें परेशानी होती है। जब मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होता है या डैम वाले पानी छोड़ते हैं, उस पानी का बहाव इतना तेज होता है कि हमें कई कई घंटे जो है ना हम मसूर होकर रह जाते हैं। हमारा राब्ता शहर से बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। गुज़श्ता साल भी हमने ये पुल बनाया, बारिश की वजह से टूट गया। ये अभी हमें अपनी मदद आप बनाया है, हमें इसका मुस्तकिल हल चाहिए। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकल सका। यहाँ के मकीनों ने हुकूमत पंजाब से आर्जी इक़दामात के बजाय मुस्तकिल पुल तामीर करने का मुतालबा किया है ताकि इनको दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद गुलफराज, समा, हसन अब्दाल। और आपको ये बताते हैं कि 8 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में कौमी वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो सका और पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। 8 साल के दौरान सूबे ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तक भी नहीं पहुँच सके। कितनी तशवीश तलब बात है। ज़हीर अली खान ने रिपोर्ट तैयार की है, देख लेते हैं। जमीन के नीचे मौजूद पानी जो कभी लामहदूद समझा जाता था, अब तेजी से कम हो रहा है। 2018 में मंजूर होने वाली कौमी वाटर पॉलिसी का मकसद इसी खतरे को रोकना था, मगर 8 साल गुजरने के बावजूद इस पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। पॉलिसी के तहत नए आबी ज़खायर की तामीर, पानी का ज़िया रोकना, सैलाब और खुश्क साली से निमटना और सबसे बढ़कर ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल को बाकायदा कानून के तहत लाना था। दियामिर बाशा, मोमेंद और दासू डैम्स पर तो काम जारी है, लेकिन ज़ेरे ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबों की जिम्मेदारियां ताहाल पूरी नहीं हो सकी। वाटर पॉलिसी के मुताबिक मोटर पंपिंग के लिए जोनिंग, लाइसेंसिंग और निगरानी का निजाम बनाना था, मगर फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक आज तक किसी सूबे ने ये इदारे कायम नहीं किए। जो रिक्वायरमेंट है अंडर नेशनल वाटर पॉलिसी, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक सामने नहीं आई। ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का क्याम सूबों में अमल में लाना था। तबाही हो रही है, एक तो वाटर की जो क्वालिटी है वो डाउन हो रही है और जो पानी हम पी रहे हैं उसमें ये है कि लोगों को गुर्दों पे इम्पैक्ट आ रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल को फौरी तौर पर मुनज़्ज़म न किया गया तो आने वाले बरसों में साफ पानी का उसूल एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। ज़ेरे ज़मीन वाटर पंपिंग की रेगुलेशंस और आबादी के तनासिब से टाउन में पानी की फराहमी की मनसूबाबंदी न होने से मुस्तकबिल में ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। ठीक है, अब आपको बताएं एक बहुत ही अहम मामला। पंजाब में बच्चों को साइबर हरासानी, नामुनासिब मवाद और ऑनलाइन खतरात से महफूज बनाने की कोशिश। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी की करारदाद असेंबली में जमा करा दी गई है, लेकिन इस पर अमल कैसे होगा, वालिदैन और खुद बच्चे इस पर क्या राय रखते हैं, ये हम आपको जो है ना वो एक रिपोर्ट में दिखा माहिरा हाशमी की रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर से मजीद भी आगे चल के बात करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र बच्चे स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ऐप्स का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से इन पर पाबंदी या इन्हें महदूद करने की पॉलिसी भी सामने आ रही है। आइए सबसे पहले बच्चों से जान लेते हैं कि वो इस इक़दाम को कैसे देखते हैं। जब भी मैं मोबाइल देखती हूँ तो अचानक से आलू गोभी वाली वीडियोस आ जाती हैं, तो जब भी मामा आ जाती हैं फिर मेरे पास मोबाइल ले लेती हैं। ये वीडियोस बंद ही हो जाएं तो अच्छा है। मोबाइल यूज़ करती हूँ, जब वो वाली वीडियोस आती हैं तो मम्मा तक आवाज़ आती है, मम्मा मोबाइल से खींच लेती हैं और फिर मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि जब मोबाइल देखने का टाइम होता है तो मम्मा मोबाइल देते ही नहीं है। हम अच्छे कार्टून देखने जाते हैं और जो ये आलू वाली वीडियो आती है ना वेगन वाली, वो बैन होनी चाहिए। बच्चों ने तो अपनी राय दे दी, लेकिन वालिदैन इस अमल को कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं।
जब मैं इन्हें मोबाइल नहीं देता ना तो ये खाना खाते हैं, चिचड़ापन इनके अंदर भी आ जाता है, गुस्सा करते हैं, कोई बात ही नहीं मानते, ना उनको काम क्या है तो काम भी नहीं करते हैं। नई नई चीज़ें जो है ना वो बच्चों को देखने की मिलती है, जिसकी वजह से बच्चों के जो मूड्स हैं ना वो स्विंग्स रहना शुरू हो गए हैं। वो एजुकेशनल जो उनका एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जिनको देख के उनके दिमाग पे गलत असरात होते हैं। रोकथाम होनी चाहिए इस चीज़ों पे, और कुछ इस तरह से मोबाइल में ऐप आनी चाहिए कि बच्चा इजीली देख सके। वालिदैन का कहना है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों को साइबर बुलिंग, हरासानी और गैर इखलाकी मवाद से बचाना रियासत की अहम जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि एक मुअस्सर और वेरिफिकेशन सिस्टम बनाकर कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाए, क्योंकि इसे बंद करना मुकम्मल हल नहीं, अलबत्ता इससे बच्चों को महफूज रखना ही वाहिद हल है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। तो बहुत अहम इशू मायरा सामने लेकर आई हमारी अपनी रिपोर्ट में हमारे सामने। इसी अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सात डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपने वक्त दिया हमें। डॉक्टर साहिबा, पंजाब असम्बली में जो करारदाद पेश हुई है, क्या ऐसे इक़दाम से बच्चों को बचाया जा सकता है? क्योंकि देखें ऑनलाइन ख़तरात से निपटने का फिर मौसर ज़रिया क्या हो सकता है? जी, thank you very much for having me here and talking about this issue. और मायरा ने बहुत अच्छी रिपोर्ट बताई हमें, जो हक़ाइक़ हैं उससे भी आगाह किया। और जो ये मामला पंजाब असम्बली में पाबंदी का है, मेरी राय इसमें ये है कि ये सिर्फ पाबंदी का मामला नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो डिजिटली कितने महफूज हैं। जब बच्चा आज की दुनिया में है तो वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, वो डिजिटल वर्ल्ड में रहता है, उससे हम इज्तनाब तो नहीं कर सकते, उसे हम कितना दूर रख सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों के लिए वो बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं जो कि उनकी एज के मुताबिक में है? यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमें नज़र आती हैं कि जो मुसलसल इस्तेमाल है या गैर ज़रूरी इस्तेमाल है मोबाइल का, और जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स जो कि अंडर 16 एज के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी बैन किए हुए हैं और उसके ऊपर कानून साजी मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात है कि अभी इस पे इनिशिएटिव लिया गया है, ऑल्दो इस पे कानून नहीं बना, लेकिन एक कोशिश की गई है। तो जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रिपोर्ट में भी वालिदैन ने भी बताया कि बच्चों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा उनके लिए एग्रेशन हमें नज़र आता है, उनके अंदर नींद के बहुत ज़्यादा मसाइल नज़र आते हैं, जज्बाती कैफियत बहुत मुख्तलिफ नज़र आती हैं। हमें ये नज़र आता है कि बच्चों की तालीमी कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है, और बहुत सारी ज़हनी सलाहियात, जिसमें कि यादाश्त का कमज़ोर होना और जज्बाती हिजानियत आना बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों में अगर हम देखते हैं तो उनमें हमें तवज्जो की कमी नज़र आती है। हमें ये नज़र आता है कि वो बोल चाल में दूसरे बच्चों के मुकाबले में जो कि स्क्रीन टाइम का कम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो मामूली मसाइल हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा और तफसील में और गहराई में जाके देखें तो हमें कुछ ख़तरात ऐसे महसूस होते हैं जो कि बच्चों की शायद ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है, जैसा कि साइबर बुलिंग का भी जिक्र किया गया। इसी तरह से बहुत सारे और सोशल क्राइम्स हैं, तशद्दुद अमेज़ वीडियोस हैं जिसके अंदर बच्चे तशद्दुद की तरफ चले जाते हैं, और इनकलकेट जो है वो एक मुआशरा हमारे सामने ऐसा आ रहा है जिसमें पेशेंस हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, ये सारे इस किस्म के एग्जांपल्स हम देख भी रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत से ज़्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की कि वो चेक एंड बैलेंस रखे कि उनका बच्चा कैसा कंटेंट देख रहा है? देखिए, इस वक्त जितने भी तहकीकी मकालात इस पे किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ग्लोबल लेवल पे भी और पाकिस्तान में भी, तो उसमें जितनी भी सजेशंस आती हैं उसमें 4 तरह की सजेशंस हमारे सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि यकीनन कानून साजी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का किरदार होना चाहिए। दूसरी तरफ ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आ रही है कि इसमें वालिदैन के लिए का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वालिदैन अपना किरदार अदा करें, वो बच्चों को बेजा इस्तेमाल से रोकें, उनके लिए ऑल्टरनेटिव मोड्स बताएं कि बच्चे अगर मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उनके लिए और क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं और कैसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसके अंदर उन्हें शामिल किया जा सकता है। तीसरी बहुत अहम चीज़ जो है वो उनकी डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड है। डिजिटल लिटरेसी ना सिर्फ बच्चों को बल्कि वालिदैन को भी इसका इल्म होना चाहिए कि कौन सी ऐप्स बच्चों के लिए महफूज हैं और कौन सी ऐप्स महफूज नहीं हैं, और इसके लिए ये भी उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किस तरह से बच्चों को फ़ायदेमंद चीज़ें जो है वो दिखा सकते हैं, और डिजिटल
ट्रेट करना भी जाहिर है ना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बल्कि वालिदैन को खुद भी इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंसाइटफुल आपने इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है डॉक्टर साहबा। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। डॉक्टर अफाफ मंजूर साहबा हमारे साथ मौजूद थी, और जाहिर सी बात है इस वक्त ज़रूरत इसी बात की है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है बखूबी तौर पर निभाएं, तभी तो इस तरह के कवानीन हम जितने मर्जी ले आएँ, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होते इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बताते हैं पेशावर में हिलाल अहमर के बुनियादी मरकज़ सेहत में ख़वातीन और बच्चों के साथ साथ मर्द भी अब इलाज मुआलजे की सहूलियात हासिल कर सकेंगे। मरकज़ में माहाना मुफ्त भी कैंप भी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, और ज़रूरत इस बात की है कि आम शहरियों के लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा। बिल्कुल, ऐसे उनको कितना फ़ायदा होगा ये देख लेते हैं हम रिपोर्ट में। अब्दुल रहमान ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। हिलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कुदरती आफात और दहशत गर्दी से मुतासरा अफराद को इमदाद और तिबी सहूलियात में पेश पेशावर बाड़ा गेट में इलाज मुआलजे की सहूलत भी दे रहा है। हिलाल अहमर की निगरानी में चलने वाला बुनियादी मरकजी सेहत अब अपग्रेड कर दिया गया। खवातीन और बच्चों को 1 दिहाई से ज्यादा अरसे से सेहत की सहूलियात देने वाले मरकज में अब मर्दाना OPD का भी इजाफा कर दिया गया है। हमने जो OPD का मकसद था कि मेल OPD हमने शुरू किया था, आपको नजर कि पहले फीमेल OPD था, आज इस मकसद के लिए हम आए थे कि लोगों को हम जितना सहूलत दे सकते हैं हम दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मरकज सेहत के मुआयने के दौरान मेल OPD का इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने बुनियादी मरकज सेहत में मर्दाना OPD शुरू होने का खैर मकदम किया। हम दूसरे अस्पताल नहीं जाते, हम बहुत खुश हैं, यहाँ पर मेडिसिन भी फ्री मिलते हैं, चेकअप भी डॉक्टर सही करते और हमें बहुत खुशी है। हिलाल अहमर के बुनियादी मरकज़ सेहत में गुज़िश्ता साल के दौरान OPD में 2679 मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया, 1644 लेबार्ट्री टेस्ट जबकि 1226 अल्ट्रासाउंड की सहूलत मुहैया की गई। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। तो बुनियादी सेहत की सहूलियात की फराहमी के हवाले से ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है।